Hello students, welcome to our online physics class, Government Girls Senior Secondary School, Mandi Harjiram Malot. So today we will discuss the topic friction. Actually ये topic ਆਪਾਂ last time ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੈ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वी कैन से फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सी अपने कोल, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन सी और तीसरा अपने कोल है रोलिंग फ्रिक्शन। तो ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਸੀਗਾ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਵਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਟੈਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ when the body is stationary, when it is not moving, that means it is that friction ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੂਵਿੰਗ ਸਪੋਜ਼। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगी जिहड़ी तुहाडी फोर्स नूं कैंसल कर रही है। जिहड़ी फोर्स तुसीं लगा रहे हो उस फोर्स नूं आपां की बोल रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जिहड़ी वो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है फ्रिक्शनल फोर्स है, ओपोजिट डायरेक्शन च होएगी हमेशा। तुसीं मान लो बॉडी नूं लैफ्ट टू राइट, आपां इत्थे तुहानूं मैं दिखा देना इदां, सपोज दिस इज़ द बॉडी, ठीक है, तुसीं इहनूं पुश करना चाहते हो, तुसीं इनते फोर्स लगा रहे हो, यू आर अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन ऑन दिस बॉडी, दिस इज़ द फोर्स विच यू आर अप्लाइंग, ठीक है। ये फोर्स है जिहड़ी आपां लगा रहे हैं और आपां की चाहते हैं बॉडी नूं, आपां चाहते हैं बॉडी नूं लैफ्ट टू राइट वाले पासे नूं लैके जाना इस बॉडी नूं। बट हो की रहा है, बॉडी हैवी है, तुहाडी फोर्स घट है, उहदे नाल की हो रहा है भी ये बॉडी मूव नहीं कर रही। तो एक ओपोजिट डायरेक्शन च इधरले पासे नूं एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है जिन्हों आप इत्थे नाम दे रहे हैं एफ फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन एस नाल आपां रिप्रेजेंट करांगे एफ एस। ओपोजिट डायरेक्शन च लगेगी अपनी फोर्स तो, ये दोनों फोर्सेस ओपोजिट हो गई। हुण जिन्नी फोर्स तुसीं लगा रहे सी उन्नी ही मान लो ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होवे जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूजे नूं की कर रही हैं, कैंसल कर रही हैं, they will cancel out each other। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬੋਡੀ it will not move। ਜੋ ਤੀਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ FS, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ घट्टो घट ग्रुप में दस्या करो भी असीं ये काम कर लिया। मेरे ख्याल हार्डली 5 या 7 या वध तो मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स है ਜਿਹੜੇ दसदे है आउट ऑफ 40, यू आर मोर दैन 40। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 30 ਜਣੇ ਹੈ 35 ਜਣੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਯੂ ਟੈਲ ਅਸ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਵੈਨ ਦਾ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਸ਼ਨ।
ठीक है। फोर्स दैट रजिस्ट मोशन, रजिस्ट करन दा मतलब की हुंदा है अपोज करना, अपोज करना, मोशन नू अपोज करना। मान लो कोई बॉडी मोशन च जा रही है या मोशन च है तो एक फोर्स है जिहड़ी उनदी मोशन नू अपोज कर रही है, अपोज रजिस्ट कर रही है, रजिस्ट कर रही है मतलब अपोज कर रही है तो मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन च लगूगी। ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर, एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के उत्ते मूव कर रही है तो उन्होंने दोनों बॉडीज़ दे विच फोर्सिस लगणगियां। आप इत्थे ड्रा करके देखते हैं। लेट अस सपोज दिस इज अवर वन बॉडी दैट वी कैन हैव ए टेबल, अपना एक टेबल का टॉप है वो है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਡੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਏ ਅਨਦਰ ਬੋਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਡੀ, ਦਿਸ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ from left to right. Suppose the body is moving in from left to right. So when the body is moving, the second body is moving over the first body, both are in contact with each other, तो होएगा कि एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, वो फ्रिक्शनल फोर्स किधरले पासे लगेगी, दैट विल बी एप्लीकेबल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि उन्हें एस बॉडी दी मोशन नू अपोज करना है। मोशन किहड़े पासे नू है, लैफ्ट टू राइट, तो दैट फ्रिक्शनल फोर्स हैज़ टू अपोज, उन्हें नू अपोज करना ही करना है। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स एस डायरेक्शन च लग रही है, उन्होंने इत्थे आपां लिख रहे हैं एफ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। बट नाल मैं इत्थे शब्द पा रहा के, के मीन्स काइनेटिक, सॉरी इट इज के इज योर दोबारा आप इत्थे लिखते हैं एफ के, जी फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, इहदा नाम आप की रखा, वी हैव हैविंग सिंबल एफ के मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन, के दा मतलब की है इत्थे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो दिस इज योर एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन जिहड़ी है उन्होंने आपां रिप्रेजेंट कर रहे हैं हेयर, ओके। तो यही चीज़ इत्थे है, फोर्स दैट रजिस्ट मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर विद विच इट इज इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, क्योंकि ये मोशन च है बॉडी, ऐसे लिए नाम की देता है इन्हों आप काइनेटिक फ्रिक्शन। दूसरा, इट इज डिनोटेड बाय एफ के एज मोशन स्टार्ट एफ एस वैनिश एंड एफ के अपीयर्स। एफ एस अपना की सीगा, व्हाट वाज इट, इट वॉज योर स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो पहले बॉडी इत्थे स्टेशनरी सी, आप एक फोर्स लगाई जाते थे, आप एक फोर्स अप्लाई की, ठीक है। उस फोर्स अप्लाई करन ते की होएगा, ये बॉडी दे विच इत्थे जदों ये बॉडी हजे स्टेशनरी है, ईवन दैन ये फ्रिक्शनल फोर्स इत्थे अप्लाई होनी शुरू हो गई ऑपोजिट डायरेक्शन च। उनका नाम आप उदों की रखिया सीगा एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन लगती रही, तुसी फोर्स लगाते रहे, ये बॉडी हजे नहीं मूव की, बट की होएगा आफ्टर सम टाइम जो तुसी ज़्यादा फोर्स लगाओगे, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की एक वैल्यू है मैक्सिमम, जिन्होंं आप लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते सी लास्ट लैक्चर च, उस तो ज़्यादा नहीं लग सकती। तुसी उस तो ज़्यादा जो फोर्स अप्लाई करती, दैन दिस बॉडी विल कम इन टू मोशन। उदों जी थोड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही सी, वैनिश का मतलब की है भी वो खत्म हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी, वो स्टैटिक फ्रिक्शन उदों खत्म हो जाएगी। उनकी जगह पर किहड़ी फोर्स आ जाऊगी, किहड़ी फ्रिक्शनल फोर्स आ जाऊगी, काइनेटिक फ्रिक्शन लगनी शुरू हो जाऊगी जदों बॉडी फिर मोशन च है। मतलब सिंपल जी गल है, जदों बॉडी रुकी हुई है उदों भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, जदों बॉडी चलन लग गई उदों भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, बट उन्होंने दोनों फ्रिक्शनल फोर्स का नाम डिफरेंट है। पहली का नाम की है स्टैटिक फ्रिक्शन, जदों बॉडी रुकी हुई है, नहीं चल रही सी, मोशन च नहीं सी, उदों तुसीं उन ते फोर्स अप्लाई कर रहे सी। पर यह ध्यान रखना है, जदों आपां फोर्स अप्लाई करांगे सिर्फ उदों ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगूगी। जे तुसीं आह वाली फोर्स जिहड़ी आपां ला रहे हैं, जेकर मैं आह वाली फोर्स रिमूव कर दिया ना लावां, तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी लग रही है बॉडी ते, 0, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं हुंदी। जिवें जिवें तुसीं फोर्स लाओगे उवें उवें स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वधनी शुरू हो जाती है, और उनकी एक मैक्सिमम वैल्यू होंदी है
वो डिपेंड करती है भी सरफेस किदां दा है, उन ते डिपेंड करती है। और उस वैल्यू नूं आपां बोलदे हां लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, उदों ज़्यादा फोर्स तुसीं ला दोगे बॉडी मूव करन लग जूगी, जो मूव करन लग जूगी उदों भी फ्रिक्शनल फोर्स लगूगी। उन्होंने नाम असीं की रखिया एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। उदों भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। अगेन दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो इन ओपोजिट डायरेक्शन, वो भी ओपोजिट डायरेक्शन च ही है। आई होप ये गल समझ आ गई। अगे चलते आई चीज़ है काइनेटिक फ्रिक्शन अपीयर्स जो बाल स्टार्ट मूविंग करना शुरू कर देंदी है, उदों काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाती है। दूसरा पॉइंट है काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये इंडिपेंडेंट का मतलब की होंगे भी चीज़ उहदे ते डिपेंड नहीं करती, कहते ते डिपेंड नहीं करती एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के उपर। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब जिवें इत्थे चीज़ आ अपने कोल अपनी फिगर सीगी, तो देखो इन्नी नहीं चीज़ जिहड़ी आ वाली है, दिस इज योर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। आ एरिया है, इस बॉडी नूं ऐसे बॉडी नूं मैं दूसरी तरह नाल रख सकदा सी, ऐसे बॉडी नूं मैं ऐदां भी रख सकदा सी बेटा, इस तरीके नाल। ऐसे बॉडी नूं इत्थे दूजे हुण दूजे तरीके नाल आपां रखता, बॉडी उही है उन्होंने उल्टा के रखता, परंतु एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हुण घट गया। देखो हुण एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इन्ना क है, जिहड़ा एरिया दोनों का एक दूजे नाल लग्या होया है हुण ओह घट है, इत्थे ज़्यादा सी। परंतु वो कहता काइनेटिक फ्रिक्शन जिहड़ा है, आ देखो आ पॉइंट देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब इहदे कहण दा मतलब ये है, चाहे बॉडी तुहाडी इदां है चाहे बॉडी इदां रख लो, काइनेटिक फ्रिक्शन सेम ही रहूगी। काइनेटिक फ्रिक्शन सेम रहूगी, एरिया के उत्ते डिपेंड नहीं करता। काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। दैट मीनस काइनेटिक फ्रिक्शन तुहाडी इंडिपेंडेंट है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के उपर। मतलब भी काइनेटिक फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के उपर निर्भर नहीं करता पिया। चाहे तुसी बॉडी नूं इदां रखिया सी, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा सी, चाहे इदां रखता एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट घट है, काइनेटिक फ्रिक्शन सेम रहूगा इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली। और दूसरा वेलोसिटी ऑफ बॉडी ते भी डिपेंड नहीं करता, चाहे बॉडी हौली चल रही है या तेज़ चल रही है, उनके ते भी डिपेंड नहीं करता, काइनेटिक फ्रिक्शन उन्नी ही रहूगी। दूसरा इट वेरीज विद नॉर्मल डायरेक्शन एंड नॉर्मल डायरेक्शन मैं तुहानूं लास्ट टाइम भी दस्सिया सी, कोई भी बॉडी है उनका वेट नीचे इनवैक्ट करता है, उनके ओपोजिट आपां लैंदे उन्होंने उपर बोलते नॉर्मल डायरेक्शन। जिवें आपां इत्थे जे मैं ड्रा करके तुहानूं दोबारा दस देना नॉर्मल डायरेक्शन की चीज़ हुंदा है। आ कोई भी बॉडी है बेटा, उनका जिहड़ा वेट है वो हमेशा नीचे इनवैक्ट करूगा। वेट ऑफ द बॉडी विल ऑलवेज बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आ बॉडी है ना अपनी, इहदे च जे आपां वेट मैं इत्थे शो करा तो इहदा वेट नीचे इनवैक्ट करूगा। दिस इज वेट ऑफ बॉडी, इनू आपां W नाल रिप्रजेंट करते हैं। ये W किंदे इक्वल हुंदा है, फॉर्मूला W इक्वल टू M इंटू G। M इज मास एंड G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। M इंटू G दे इक्वल हुंदा वेट। और इनदे ओपोजिट एक फोर्स लगती है जिन्होंने बोलते हैं नॉर्मल डायरेक्शन, उन्होंने आप N नाल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। क्लियर? दैट मीन्स दिस नॉर्मल डायरेक्शन इज जस्ट इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ बॉडी तो इक्वल होंगे, मतलब जो बॉडी भारी है तो नॉर्मल डायरेक्शन ज़्यादा है, बॉडी हल्की है तो नॉर्मल डायरेक्शन घट है। ओके, हुण आप इत्थे गल कर रहे हैं जिहड़ी काइनेटिक फ्रिक्शन है वो नॉर्मल डायरेक्शन दे प्रोपोर्शनल है। इहदा मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन जिहड़ी लगूगी वो नॉर्मल डायरेक्शन के उत्ते डिपेंड करती है। नॉर्मल डायरेक्शन काहते डिपेंड करता है, वेट के उत्ते डिपेंड करता है। इहदा मतलब जेकर कोई बॉडी भारी है तो उदों काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, जेकर कोई बॉडी हल्की है तो उदों काइनेटिक फ्रिक्शन घट होगी। ठीक है, तो आही चीज़ आप इत्थे लिख रहे हैं, एफ के इज़ प्रोपोर्शनल टू एन, एन इज़ नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है, एफ के इज़ योर काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड जो आप प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव किया, कॉन्सटेंट लगाता इंटू एन लगाता, इतने कॉन्सटेंट की थां ते आप म्यू के यूज़ करता। दिस इज म्यू के, दिस सिंबल इज फॉर म्यू। ठीक है, म्यू के मतलब काइनेटिक, के इज फॉर काइनेटिक। इट इज़ कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इन्हों बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। हेयर यू कैन रीड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, दिस इज द म्यू के, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ गए गल? हुण तीन चीज़ां हो सकदियां। वैन अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर दैन काइनेटिक फ्रिक्शन, तुसीं जिहड़ी फोर्स लगाई वो ज़्यादा है काइनेटिक फ्रिक्शन तो। एफ ए मतलब फोर्स अप्लाइड, तुसीं जिहड़ी फोर्स लगा रहे हो, जिवें आपां उपर गल कर रहे सी, इत्थे आपां फोर्स ला रहे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है। मान लो जिहड़ी फोर्स तुसीं लगा रहे हो इन्हों आपां की नाम दिता, एफ ए। एफ ए मतलब फोर्स अप्लाइड, अप्लाइड मतलब जिहड़ी आपां फोर्स लगाई।
ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ, ਕਾइनेटिक फ्रिक्शन ਤੋਂ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਆ ਚੀਜ਼ फर्स्ट, when force applied is greater than kinetic friction, ठीक है। this is our first case when applied force is greater than Fk। Fk मतलब kinetic friction, that means Fa is greater than Fk। Fk ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੈ, Fa minus Fk is equal to m into a, ठीक है। m into a ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, what does it mean? इट मीनस राजे देखो, इत्थे मैं दोबारा तुहानूं एक सिनेरियो बना के दिखाना की हुंदा पिया। आ एक बॉडी है, तुसी इस बॉडी दे उत्ते एक फोर्स लगा रहे हो, तुसी इन्ते फोर्स अप्लाई कर रहे हो। फोर्स तुसी जिहड़ी अप्लाई कर रहे हो उनकी वैल्यू है, सपोज करो उनकी वैल्यू है 15 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू कितनी है, 15 न्यूटन है जिहड़ी इस बॉडी ते आपां लगा रहे हैं, ठीक है। ये बॉडी किसी दूजी बॉडी के उपर पई है, ठीक है, उवें सारा नहीं आपां बना रहे। तो उदों जदों ये बॉडी मूव करती पई है दूसरी बॉडी के उपर, तुहाडी फोर्स कितनी तुसीं लगाई है, 15 न्यूटन। परंतु जिहड़ी काइनेटिक फ्रिक्शन है इस केस जिन्हों आपां की कहने हुन्ने आ, एफ की कहांगे इहनूं आपां, एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये वैल्यू जिहड़ी है, ये वैल्यू सपोज करो हैगी है 7 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी है तुहाडी, 7 न्यूटन है। ये ओपोजिट डायरेक्शन च लगनी है, तुसी फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हो, 15 न्यूटन। इहदा मतलब इस बॉडी के उत्ते नैट फोर्स कितनी लग रही है, नैट फोर्स 15 न्यूटन तुसी इधर नूं फोर्स ला रहे सी, 7 न्यूटन बॉडी ते उत्ते आटोमैटिकली फ्रिक्शनल फोर्स ओपोजिट डायरेक्शन च लग रही है। इहदा मतलब नैट फोर्स बॉडी ते लैफ्ट टू राइट इधर नूं लगूगी, कितनी लगूगी, हुण आपां की लिखांगे, वी विल राइट इट 15, आपां इहनूं की लिखांगे 15 माइनस हाउ मच, 7, एनी फोर्स लगनी है। एनी फोर्स जिहड़ी है आ चीज़ की है, व्हाट वाज 15, इट वाज योर, एनू आपां की कहने पे हैं, एनू आपां बोलते पे हैं दिस इज योर फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड Fa। आ जिहड़ी फोर्स है 7 न्यूटन दी की है, Fk काइनेटिक फ्रिक्शन। तो दिस इज योर Fa, जिहड़ी गल आ लिखी है बेटा, मैं इत्थे इहदे नाल इहनूं रिलेट करन जा रहा ऐस नूं मैं इत्थे लैके जा रहा, ठीक है। Fa माइनस Fk, Fa is your 15 माइनस Fk is your 7, ठीक है। आ चीज़ Fa माइनस Fk ये किंदे कोल होगी, हुण नैट फोर्स इन्नी लगनी है ना, आ चीज़ इन्नी नैट फोर्स लगनी है। आ नैट फोर्स होगी जिहड़ी बॉडी दे उत्ते लग रही है, और जिहड़ी फोर्स लगूगी उनके करके उनदे च की होगा, अपना पुराना एक फॉर्मूला सीगा कि फोर्स F इज इक्वल टू जिन्नी फोर्स हुंदी है जदों आपां किसी बॉडी ते फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स किंदे कोल आंदी है, वो M इंटू ए दे इक्वल आती है, M इंटू ए दे, वेयर M वाज मास, A इज योर एक्सेलेरेशन। तो अपना एक फॉर्मूला सी कि F इज इक्वल टू M इंटू ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। इहदा मतलब जिन्नी नैट फोर्स लग रही है वो फोर्स मास इंटू एक्सेलेरेशन दे इक्वल होगी, उसनूं आपां Fa माइनस Fk इज इक्वल टू M इंटू ए लिखता। क्लीयर हो गया। Fa माइनस Fk साडा की है, ये नैट फोर्स है जिहड़ी बॉडी के उत्ते टोटल फोर्स लग रही है, हुण वो Ma दे इक्वल होगा क्योंकि उनका फॉर्मूला ही है फोर्स बराबर M इंटू ए हुंदा है। तो इत्थों आपां A की वैल्यू जे कैलकुलेट करिए, M तुसीं उधर ले जाके डिवाइड कर दोगे, M जिहड़ा तुहाडा इधर है इहनूं तुसीं दूजे पासे लै जाओगे, नीचे चला जाऊगा ना, जिवें आपां क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो A इज इक्वल टू किंदे इक्वल आ जाऊगा, Fa माइनस Fk डिवाइड बाय M। इहदा मतलब इस बॉडी च कितनी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगी तुसीं कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। By using this formula you can calculate the acceleration produced in this body ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਸੀਗੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਈਨਸ ਜਿੰਨੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਸ ਆਫ ਬੋਡੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਹੁਣ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਨ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ काइनेटिक फ्रिक्शन Fk। हुण केस की है भी आ 15 न्यूटन तुसी फोर्स लाई तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी मान लो 15 न्यूटन सी, तो फिर नैट फोर्स कितनी आ जाएगी 15 माइनस 15, फोर्स कितनी लगी बॉडी दे 0, जे फोर्स 0 लगी तो उनके एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी
0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ ਹੀ ਘਟ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ 0 ਹੈ। ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ 0 ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਨ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਕੇ, ਐਫ ਏ ਤੁਹਾਡਾ ਐਫ ਕੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਐਸ ਏ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਸ ਏ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਐਸ ਏ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਐਫ ਏ ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਕੇ, ਐਫ ਏ ਤੁਹਾਡਾ ਐਫ ਕੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦੋਗੇ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਇਨਟੂ ਏ, ਤਾਂ ਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 0, ਏ 0 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ, ਵੈਨ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ 0, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਫ ਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 0 ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਫੋਰਸ ਐਫ ਏ 0 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਫ ਏ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਐਸ ਏ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਫ ਏ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 0 ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਏ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਕੇ ਬਾਈ ਐਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਫ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਐਮ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ। ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ, ਬੋਡੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜੂਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੋ ਮੋਸ਼ਨ ਅਕਰ, ਦਾ ਬੋਡੀ ਸਟਾਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਨ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਜੇਕਰ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਨੋ ਮੋਸ਼ਨ ਅਕਰਸ, ਉਦੋਂ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਊ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫ ਕੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ, ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ 0 ਹੋਏਗਾ। ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 0, ਔਰ ਬੋਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ, ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਨੋ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਡੂ ਇਟ, ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਡੂਇੰਗ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਲਰਨਿੰਗ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੋ, ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਕ ਸੀਗਾ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਟੌਪਿਕ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਰੋਲਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਈਵਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਟੂਡੇ ਯੂ ਡੂ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਬਾਏ।